تو بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ دفاعی تنصیبات پر حملوں کا منصوبہ 8 مئی کو زمان پارک میں تیار کیا گیا۔ ٹیکنیکل تجزیے اور جیو فینسنگ سے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے رابطوں سے متعلق ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کی 6 اہم شخصیات کے روابط کا ریکارڈ سامنے آ گیا ہے، جبکہ یاسمین راشد، حماد اظہر، میاں محمود الرشید اور دیگر کابلوائیوں سے مسلسل رابطہ رہا ہے۔ مجاہد لطیف مارزا موجود ہیں۔ مجاہد، آگاہ کیجیے گا اس خبر کے حوالے سے۔ آج بالکل آپ میں زبان پاک کو 9 جناح ہاؤس میں یہ ہیں یاسمین راشد، حماد اظہر، محمود الرشید، اعجاز چودھری، اسلم اقبال، مراد عباس جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں رہے۔ ریکارڈ کے مطابق 215 جو کالز ہیں وہ 9 مئی کو رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہے۔ جیو فینسنگ ریکارڈ کے مطابق یاسمین راشد کا رابطہ بذریعہ کال بار ہوا اور جیو فینسنگ ریکارڈ کے مطابق ہمارے موبائل سے 10 کال جو ہیں وہ شہر مستندوں کو کی گئی۔ محمود الرشید 73 بار موبائل رابطوں کے ساتھ رہے۔ جیو فینسنگ ریکارڈ کے مطابق اعجاز چودھری کی جانب سے کی جانے والی اور موصول ہونے والی 50 کال جو ہیں وہ ریکارڈ میں آئی ہیں۔ اسلم اقبال 16، مراد 23 جو ہیں کال جناح ہاؤس میں موجود شہر پسندوں کو کی گئی۔ جیو فینسنگ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری سے قبل ہی گرفتاری کے خدشات پر رد عمل تیار کر لیا گیا تھا۔ پہلے ہی رد عمل تیار کر لیا گیا تھا۔ مجاہد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کے خلاف جناح ہاؤس پر حملہ اور توڑ پھوڑ کا ایک کیس ہے۔ مزاج دہشت گردی میں پیشی کے دوران گرمی سے خدیجہ شاہ کی طبیعت خراب۔ خدیجہ شاہ کے مطابق وہ دمے کے مرض میں مبتلا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے نعمان نور، بتائیے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ پی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کے خلاف جناح ہاؤس پر حملہ اور توڑ پھوڑ کا یہ کیس ہے۔ انسداد دہشت گردی میں پیشی کے دوران گرمی سے خدیجہ شاہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے نعمان نور، جی بتائیے۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما خدیجہ شاہ اور ہما سعید کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ یہ پچھلے تقریباً 3 گھنٹوں سے ملزمہ کو پریزن وین میں بند رکھا گیا، جس سے خدیجہ شاہ کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہوئی، جس پر خدیجہ شاہ نے جو ہے وہ وہاں پر موجود پولیس افسر سے درخواست کی کہ مجھے جو ہے فوری طور پر اس پریزن وین سے نکالا جائے، جبکہ انہوں نے اپنے وکلا سے بھی درخواست کی، جس پر وکیل نے عدالت میں معزز عدالت سے استدعا کی، جس پر عدالت کے حکم پر اب خدیجہ شاہ کو کمرہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اور کمرہ عدالت میں خدیجہ شاہ کے جو شوہر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور عدالت نے کمرہ عدالت میں خدیجہ شاہ کے شوہر کو ان سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے، جبکہ خدیجہ شاہ اور ہما سعید کو چہرہ ڈانپ کر جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کی جانب سے خدیجہ شاہ کو شناخت ریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی استدعا کی گئی ہے، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو فائل کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان جو ہیں وہ کیس پر سماعت کر رہی ہیں، اور خدیجہ شاہ اور ہما سعید کو کمرہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا نعمان۔ میرے کل کے فیصلے پر کچھ دوست ناراضگی اور کچھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرا اختلاف بہت پہلے سے تھا، جو عثمان گلزار بھی جانتے تھے۔ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار صرف عمران خان کو سمجھتا ہوں۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی میاں جلیل احمد شرپوری کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا کہ جو کچھ بھی ہوا، جس نے بھی کیا، اس کے رسپونسیبل عمران خان صاحب ہے، ان کی غلطی ہے۔ ان کی خوبیوں سے مجھے محبت ہے، لیکن جب غلطی ایک ایسی ہو جائے جو ملک کے لیے تباہی کا باعث بنے تو پھر ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا سوچ سمجھ کے، پریشر کے اوپر، اپنے ذہنی پریشر کے اوپر، کہ میں اب خان صاحب کی کس بات کو ڈیفنس کروں، کیسے ڈیفنس کروں، اور کس طریقے سے میں خان صاحب کی فیور کروں۔ جب میں پہلے بھی مہینہ پہلے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کی عادت سے سائڈ پہ ہو جائیں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو چلانے دیں، تاکہ خان صاحب کی جو طبیعت کے اندر سختی ہے وہ سیاسی نظام کے لیے مفید نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مشورہ بھی نہیں مانا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو کئی مشورے دیے سن لیتے تھے، مانتے نہیں تھے۔
बहरहाल मेरे जैसे के लिए फिर यही था कि मैं किनारा कशी करूं और खां साहब जाने उनका काम। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ, घेराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला है। शादमान थाना को नज़र आतिश करने के मुकदमे में नामजद 7 शरपसंदों की शनाख्त हो चुकी है। मुलजिम अली हमजा, फैकुद्दीन, फरीद खान, माजिद अली और अब्बास अली की शनाख्त हो चुकी है। अदालत ने मुलजमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमान नूर, बताइए। जी, इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ गिराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस पर समाअत हुई, जबकि थाना शादमान को नजर आतिश करने के मुकदमे में मजीद 7 शरपसंदों की शनाख्त हो चुकी है। जबकि मुलजमान में अली हमजा, रफीकुद्दीन, फरीद खान, माजिद, अयाज, अरबाज, रुमान वगैरह शामिल हैं। जबकि तफ्तीशी अफसर ने मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुलजमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। मुलजमान पर थाना शादमान की बिल्डिंग को नजर आतिश करने का इल्ज़ाम है। जबकि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज अबहर गुल खान ने मुलजमान के खिलाफ केस पर समाअत की। मुलजमान को शनाख्त का अमल मुकम्मल होने पर, शनाख्त होने पर जो है वो अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने समाअत करते हुए मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब में आइंदा 4 माह के तरक्याती बजट पर सिफारिशात निगरां हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। तो आइंदा माली साल में 4 माह के तरक्याती बजट का हुजम 330 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। पंजाब में आइंदा 4 माह के तरक्याती बजट पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश की गई हैं। आइंदा माली साल में 4 माह के तरक्याती बजट का हुजम 330 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। तो आपको बताएं कि पंजाब में आइंदा 4 माह के तरक्याती बजट पर सिफारिशात निगरां हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। पंजाब में 5 मॉडल कब्रिस्तानों की तैयारी के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। शहर में 4 में से 2 मॉडल कब्रिस्तानों की तमीर का काम मुकम्मल हो चुका, जबकि लाहौर के मॉडल कब्रिस्तानों के लिए 3 एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी गई हैं। इसी बारे मजीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में 5 मॉडल कब्रिस्तानों की तैयारी का मामला है और इसके लिए 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। लाहौर शहर के 4 में से 2 मॉडल कब्रिस्तान की तमीर मुकम्मल कर ली गई है। लाहौर में भाई कोट रायबंड और रसूल असल बेदिया रोड पर 2 मॉडल कब्रिस्तान की तमीर मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि लाहौर में दीगर 2 मॉडल कब्रिस्तान गंज शरीफ, काना नूर रोड और आहलो काचा रोड पर भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें लाहौर के मॉडल कब्रिस्तानों के लिए 3 एम्बुलेंसेज गाड़ियां रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी गई हैं। मैयतों की लवाहिकीन के मॉडल कब्रिस्तानों तक जाने के लिए 5 बसें मुहैया की जाएंगी। जबकि वज़ीर-ए-आला ने नादरा अफराद के लिए मॉडल कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 10,000 रुपये चार्जेस खत्म कर दिए हैं। मॉडल कब्रिस्तानों में तदफीन की फीस 10,000 से कम करके 3,500 रुपये कर दी गई है। शहरी मॉडल कब्रिस्तानों के एम्बुलेंस सर्विस के लिए हेल्पलाइन 1190 पर रब्ता कर सकेंगे। जबकि मॉडल कब्रिस्तानों में कब्रें एक्सीवेटर के जरिए खोदी जाएंगी, जबकि तमाम सब कब्रें एक ही साइज और एक ही तरह की बनाई जा रही हैं। हर मॉडल कब्रिस्तान में औसतन 12,000 कब्रें बनाई जा सकेंगी। जबकि सोए असल बेदिया रोड मॉडल कब्रिस्तान 276 के नाम पर मीटा, यहाँ 18,000 कब्रें बनाई जा सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का इमरान। समनाबाद के मकाम पर अंडरपास की तामीर का मंसूबा। शहर में पहली बार किसी मेगा प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए 24 घंटे तामीराती काम की मॉनिटरिंग की जाएगी। जबकि DGLDA चीफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर बराह रास्त मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिए। LDA की जानिब से समनाबाद के मुकाम पर अंडरपास की तमीर का काम जारी है और इस तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए 30 मई की डेडलाइन दी गई है। ताहम अब इंतजामिया की जानिब से ये फैसला किया गया है कि समनाबाद अंडरपास की तामीराती कारकर्दगी की रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग की जाए। इसी तनाजुर में ये कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और शहर लाहौर में पहली बार किसी भी मेगा प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। इन मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए 24 घंटे तामीराती काम की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। जबकि DGLDA चीफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर बराह रास्त इस मंसूबे की मॉनिटरिंग करेंगे। अंडरपास के बैरल और एडग्रेड वर्क्स पर कैमरों की तनसीब की गई है ताकि तामीराती काम को चेक किया जा सके। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर को ये हदायत जारी कर दी गई हैं
کہ 24 घंटे तामीराती काम को जारी रखा जाए ताकि डेडलाइन के मुताबिक इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सके। मौजूदा सूरत हाल में सबनाबाद अंडरपास पर जो तामीराती काम है वो 75% मुकम्मल हो सका है और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस अंडरपास को डेडलाइन जो कि 30 मई दी गई है, इस डेडलाइन पर इस मंसूबे को मुकम्मल करना LDA के लिए मुश्किल होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक इस मंसूबे की लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकी। गुज़िश्ता 5 माह से लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की जानिब से अराजी एक्वायर करने के लिए जो अवार्ड है वो जारी नहीं किया गया और अराजी एक्वायर ना होने की वजह से भी तामीराती काम में ताख़ीर हो रही है। इसके अलावा अंडरपास के गुलशन डाबी रैंप के लिए अभी भी 7 पाइलें होना बाकी हैं और जब तक ये पाइलें मुकम्मल नहीं होंगी तब तक गुलशन डाबी रैंप मुकम्मल नहीं होगा। गुलशन डाबी रैंप की 7 पाइलें सीवरेज की मरकजी लाइन की शिफ्टिंग ना होने की वजह से इल्तवा का शिकार हो रही ठीक है, हैं। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामी जमीयत तलबा लॉ कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम VC ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। लॉ कॉलेज के तलबा की यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि तलबा का यह कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया LLB के मार्किंग निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर करे। नामुनासिब मार्किंग सिस्टम के सबब LLB में दाखिला लेना मुश्किल हो गया है। इस्लामी जमीयत तलबा लॉ कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम VC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया है, जबकि लॉ कॉलेज के तलबा की यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया LLB के मार्किंग निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर करे। नामुनासिब मार्किंग सिस्टम के सबब LLM में दाखिला लेना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ और एहतजाज का ये केस है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया है। मुल्ज़िमान अली हमजा, अब्दुल कादिर, सलमान, रफ़ीउद्दीन वगैरह को अदालत पेश किया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ और एहतजाज का ये केस है। इसी पर नुमान नूर से तफसीलात जानेंगे। नुमान, कहिएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ करने और एहतजाज करने के केस में मुलविस कसूर थाना कसूर के मुकदमा में मुलविस मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड कर दिया, जबकि ठीक है, नुमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी शहर में तिबी सहूलियात के मुतहरिक डेंगी, पोलियो, हिफाजी टीका की मुहिम को तेज़ करने का फैसला। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक का ये कहना है कि शहर में डेंगी वायरस को रवां साल काबू किया जाएगा। शहर में पोलियो के माहौलियाती नमूने मनफी हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बताइए। आज बिल्कुल लाहौर में शहरियों को तिबी सहूलियात फ्राहम करने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से कई प्रोग्राम्स शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें डेंगी प्रोग्राम है, पोलियो प्रोग्राम, इसके साथ साथ बच्चों को हिफाजती टीका जिसे EPI प्रोग्राम भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़ोरों शोरों से जारी है। तो इस वक्त CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? क्या इस दफ़ा भी लोग डेंगू वायरस से कितना महफूज रहेंगे? पोलियो की क्या सूरत हाल है और EPI कवरेज की इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल है? जी, डेंगू के हवाले से तो यह है कि पेशेंट जो है वो डेली एक आ ही रहा है हमारे पास। मतलब पिछले लास्ट वीक में हमारे को 3 पेशेंट थे और टीमें हमारी उसी तरह जिस तरह हर साल काम कर रही होती हैं उसी तरह ही हैं। लेकिन इस वक्त मौसम के जो चेंज की वजह से जो बारिशों का सीज़न भी इस पर काफ़ी रहा लास्ट में, उसमें तो पेशेंट्स एज़ कम्पेयर टू लास्ट जो 2-3 साल थे हमारे, उसमें बड़ा फ़र्क है। इधर केसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी तरफ से बड़ी कोशिश है, हमारी टीम की तरफ जो जाती हैं घरों में और जाकर ये जो लार्वा सर्विलेंस है इसकी हो रही है, और उसके बाद सुपरवाइजर्स हैं प्रॉपर्ली जाके लोगों को अवेयरनेस भी एक तो दे रहे हैं और दूसरा टीमों के साथ साथ देख रहे हैं कि बाकी टीमें सही तरह काम कर रही कि नहीं कर रही। और ये बताइएगा पोलियो की क्या सूरत हाल है, EPI की क्या सूरत हाल है? हमारी जो कैंपेन हुई थी लास्ट वीक में, उसमें बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट रहा। टीमों ने बड़ा अपनी मेहनत के साथ उस गर्मी के मौसम में काम भी किया है और बच्चों को जाके घर घर जाकर उन्होंने कतरे भी पिलाए, और उसका अभी नतीजा ये निकला है कि हमारी अभी कोई 16 के करीब लॉट्स हुई हैं, जिसमें से सिर्फ एक UC जो 28 थी हमारी रावी टाउन की, उसको छोड़ के बाकी तमाम की तमाम पास हैं। और जो EPI है, EPI के लिए हमने सेठ साहब की हदायत के ऊपर जो है एक बड़ा प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया था, 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने मैक्सिमम जितने बच्चे हमारे हैं उनके हिफाजती टीका जात उनको लगाए जा रहे हैं, और जो बच्चे रह जाते हैं या किसी वजह से वो वैक्सीनेट नहीं हो सके उनको भी हम उसमें ला के कवर कर रहे हैं।
और हमें उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है वो हम 80% को हम क्रॉस करेंगे इस 30 जून तक। जो जी बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर जो बच्चे हैं उनको EPI कवरेज का भी जो टारगेट है उसको पूरा करने के वाले से इकदाम किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है SU हेल्थ की जानिब से कि इस दफ़ा जो डेंगू वायरस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के वाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं, लार्वा की सर्विलेंस भी की जा रही है, टीमें भी मुतहरिक हैं ताकि पोलियो के साथ साथ डेंगू का भी इस दफ़ा जो है ये ख़त्म किया जा सके। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी के मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात हुई है। लाहौर समेत पंजाब भर में 18 लाख मुफ्त आटे के थैले गायब होने का इंकशाफ हुआ। ज़राए के मुताबिक लाहौर में 100 से ज़ायद मुफ्त आटे के ट्रकों की तलाशी जारी है। गायब आटे के ट्रकों की कीमत 13 करोड़ बताई जा रही है, जबकि तहसील सिटी में 84 आटे के ट्रक कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। बाकी 4 तहसीलों में 18 ट्रकों के थैले भी गायब हुए। ये क्या मामला है, ये बताएंगे इमरान अकबर। जी बताइए। आज बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी के फ्री आटा स्कीम में 20 अरब की करप्शन के इल्ज़ाम पर तहकीकात में इब्तदाई पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें लाहौर समेत सूबा भर में रमज़ान में फ्री आटा स्कीम खुद केस में इंक्वायरियाँ जो है उनके लिए अहकाम दे दिए गए हैं। इंक्वायरी कमेटियाँ जो है तश्कील दे दी गई हैं, जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर में 18 लाख मुफ्त आटे के थैले गायब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें महकमा खुराक के ने 9 डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने चारों DCs को फौरी इंक्वायरी कमेटी बनाने की हदायत जारी कर दी है, जबकि लाहौर समेत कसूर, शेखपुरा और ननकाना में मुफ्त आटे के थैले के गायब होने का भी इंकशाफ सामने आया है। कसूर में 2 लाख से ज़ायद थैलों की तलाश जारी है, जबकि शेखपुरा में 1.5 लाख थैले जो है वो गायब हुआ है। इसी तरह ननकाना साहब में 50,000 थैले गायब हुए हैं। लाहौर डिवीजन में मुफ्त आटा स्कीम करोड़ों रुपए का आटा गायब हुआ है, जिसमें जिले इंतजामिया लाहौर ने रेवेन्यू अफसरान व मुलाजिम ने सर जोड़े हैं, जिसमें लाहौर में मुफ्त आटा स्कीम की मद में 100 से ज़ायद आटे के ट्रकों की तलाश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मालूम है कि लाहौर में आटे की कीमत 13 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें तहसील सिटी में 84 आटे के ट्रक जो है वो भी गायब हैं, और इसके साथ साथ बाकी 4 तहसीलों में 18 ट्रकों के थैले जो हैं वो भी गायब हुए हैं। शनाख्ती कार्ड और इसके एवज दिए जाने वाले आटे के थैलों में वाजिया फर्क से इंकशाफ सामने आया है, जिसमें आटा मिलों से जारी हुए पटवारियों ने तस्दीक की, लेकिन आटा कहाँ गया तलाश जारी है। डाटा इंटरप्रेटर्स में आटे की तकसीम में वाजिया फर्क देखा गया है, जबकि जिले इंतजामिया लाहौर ने कमेटी बना दी है। एडिशनल कमिश्नर जनरल जिशान रांझा और एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। जिले इंतजामिया लाहौर के मुताबिक मामला की तहकीकात के बाद सूरत वाज़ेह हो जाएगी, जबकि अगर मुफ्त आटा स्कीम में कोई भी मुलव्वस हुआ तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा ने भी तमाम DC से आटे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया इमरान पर आपका। महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका है। अशिया ज़रूरत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा है, जबकि 10 सब्जियों के दाम मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। शहरियों की कोते खरीद जवाब दे गई है। महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। सरकारी रिलीज में 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इंतजामिया निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने के लिए इकदाम न कर सकी। प्याज 2 रुपए महंगा होकर 50 रुपए किलो मुकर्रर। दर्जाबल खुश्क प्याज 70 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च 10 रुपए महंगी, सरकारी कीमत 70 के बजाय 90 रुपए किलो में दस्तयाब है। बैंगन 10 रुपए महंगे होकर 70 रुपए किलो हो गए। मार्केट में 90 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। करेले 5 रुपए इजाफे से 100 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी, भिंडी, अरबी, घिया तोरी 10 रुपए, शिमला मिर्च 7 रुपए, पालक 5 रुपए फी किलो महंगी हो गई। फलों की कीमतें भी आवाम की पहुंच में ना सकी। खरीदारों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। बच्चों का पेट पालें, बिल अदा करें या घर का किराया दें। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रही। अब हमारे से हिम्मत नहीं होती, इतनी महंगाई बढ़ गई है। हमारी तनख्वाहें उतनी हैं, पेंशन उतनी है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी गवर्नमेंट को कोई हमारा ख्याल नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगाई इस दौर में हुई है। गरीब आदमी तो कुछ खरीद ही नहीं सकता, ना कोई ये ले, यानी कि ना सब्ज़ी, गोश्त, चिकन वगैरह हर चीज़ इस हुकूमत ने इतनी की महंगाई कर दिया, हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए सस्ता होकर 579 रुपए फी किलो हो गया। गर्म मौसम में भी फार्मी अंडे 270 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गंदम की खुलेआम नकलो हमल पर पाबंदी खत्म और परमिट खुल जाने से मसनूई महंगाई के असरात खत्म हो गए हैं। ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती हुई कीमतें क्रैश कर गई हैं। 650 रुपये कमी से फी मन गंदम 4800 रुपये से 4150 रुपये पर आ गई है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये से 2420 रुपये में सप्लाई किया गया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए।
محکمہ خوراک پنجاب کی کوششیں رنگ لے آئیں، گندم کی کھلے عام نقل و حمل پر پابندی ختم، پرمٹ کھل جانے سے مصنوعی مہنگائی کے اثرات ختم ہو گئے، گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آنے لگی، نئی گندم کی فی من سرکاری قیمت 3970 روپے ہے۔ دوسری طرف مارکیٹ میں ایک ماہ بعد گندم اور آٹے کی قیمتوں میں واضح کمی آ گئی، شہری ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے چنگل سے آزاد ہو گئے۔ اوپن مارکیٹ میں 650 روپے کمی سے فی من گندم 4800 روپے سے 4150 پر آ گئی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2750 روپے سے 2420 روپے میں سپلائی کیا گیا، 10 کلو آٹے کا تھیلا 1300 روپے میں فروخت ہونے لگا، 1 کلو آٹا 120 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن افتخار مٹو کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ سیکرٹری فوڈ زمان وٹو کا کہنا تھا کہ گندم کی بین الاضلاعی نقل و حمل پر پابندی ختم ہونے سے ذخیرہ اندوزوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، گندم اور آٹے کی قیمتیں مستحکم ہو گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے نان، روٹی، دودھ اور دہی کی قیمتیں بڑھانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اشیاء خوردنوں سمیت روٹی، نان، دودھ کا نیا نرخ نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ قیمتوں میں واضح کمی سامنے آئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نان، روٹی، دودھ اور دہی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے روٹی نان بائی ایسوسی ایشن اور دودھ فروش ایسوسی ایشن کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے روٹی نان کی قیمتیں بڑھانے سے معذرت کر لی۔ ضلعی انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق روٹی 15 روپے اور نان 25 روپے کا ہی فروخت ہوگا، دودھ 140 روپے فی لیٹر اور دہی 165 روپے فی کلو مقرر۔ دال مونگ کی قیمت میں 15 روپے فی کلو کمی کر دی گئی، بیسن 10 روپے، دال چنا 5 روپے، دال مسور اور کالے چنے 5 روپے فی کلو سستے ہو گئے۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے فوائد عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نئی ریٹ لسٹوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنائیں، عوام کسی بھی جگہ ریٹ لسٹ کی عدم موجودگی یا اوور چارجنگ کی اطلاع دیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی تو اچھا اقدام ہے، لیکن گراں فروشی کو کنٹرول کرنا ضلعی مجسٹریٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی احد چیمہ کی بریت کی درخواست پر نیب کا جواب جمع ہو چکا ہے۔ نیب کے مطابق آشیانہ پروجیکٹ میں احد چیمہ کے کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے گئے۔ آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تمام معاہدے قانون کے مطابق کیے گئے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز بتائیں کہ نعمان نور، بتائیے۔ جی، احتساب عدالت میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی احد چیمہ کی بریت کی درخواست پر نیب نے جواب جمع کروا دیا ہے، جبکہ آشیانہ پروجیکٹ میں احد چیمہ نے کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے، یہ جواب میں لکھا گیا، جبکہ نیب کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں احد چیمہ کو بے قصور قرار دیا گیا ہے، جبکہ آشیانہ پروجیکٹ میں حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ اس حوالے سے آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تمام معاہدے قانون کے مطابق کیے گئے ہیں، جبکہ جواب میں یہ بھی لکھا گیا کہ احد چیمہ پر بطور رشوت 32 کنال زمین لینے کا الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ عدالت قانون کے مطابق درخواست کا فیصلہ کرے، جبکہ جواب میں یہ بھی لکھا گیا کہ عدالت جو ہے اس جواب اور اس کی جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس رپورٹ کے مطابق عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کریں، جبکہ احد چیمہ کے کیس میں چیئرمین نیب کی ہدایت پر دوبارہ تفتیش کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، جبکہ احد خان چیمہ نے آشیانہ ریفرنس میں بھی بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بہت شکریہ آگاہ کرنے کا۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں خاتون کو اغوا کرنے کے کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ملزم ندیم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزم کے خلاف جسمانی ریمانڈ پر سماعت کی ہے۔ ابوبکر طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابوبکر، کیس پر سماعت ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ماڈل ٹاؤن کچہری میں خاتون کو زیادتی کی نیت سے اغوا کرنے والے ملزم کے جسمانی ریمانڈ پر سماعت ہوئی ہے، جبکہ عدالت نے ملزم ندیم کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزم کی جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور پروسیکیوشن نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملزم نے اپنے علاقے سے خاتون کو زیادتی کی نیت سے اغوا کیا، جبکہ ملزم سے جو ہے وہ ابھی تک خاتون بازیاب نہیں ہو سکی اور اس کو بازیاب کروانا ہے۔ عدالت ملزم کا 9 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کرے تاکہ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید کارروائی کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کی قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی انتخابات کو روک دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔
फैसला आबाद और ननकाना साहब में कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के दोनों हलकों में ज़िमनी इंतखाबात को रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने PTI रहनुमा फरक हबीब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। फैसलाबाद के हलका NA 108 और ननकाना साहब के हलका NA 118 में ज़िमनी इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने निशानदही की कि कौमी असम्बली के हलका NA 108 और NA 118 में 28 मई को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए 120 दिन रह जाएं तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकता। अब कौमी असम्बली की तहलील में 120 रोज से भी कम वक्त रह गया है और फिर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस्तदा है कि ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल कालादम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के दोनों हलकों में 28 मई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को रोक दिया और दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करना है तो पहले फंड्स दें। LDA ने तकमील के करीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए फंड्स की इस्तदा कर दी है। LDA ने टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए पंजाब हुकूमत से रुजू कर लिया। ज़ैनुल आबिदीन हमें ज्वाइन किया है। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर में 9 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तमीर का काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। ताहम ये तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए इस वक्त पंजाब हुकूमत और LDA को फंड्स दरकार हैं। LDA ने तकमील के करीब पहुंचने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए फंड्स की इस्तदा कर दी है। LDA ने टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए पंजाब हुकूमत से रजू किया है, जिसमें चाइना स्कीम मॉडल बाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स की डिमांड की गई है। इसी तरह बॉक्सिंग जिम्नेजियम नेचर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की इस्तदा की गई है। शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 32 करोड़ 58 लाख 65 हजार रुपए, जबकि सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए रवा माली साल में ही 58 करोड़ 76 लाख रुपए की डिमांड की गई है। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए 21 करोड़ 61 लाख रुपए, इसी तरह कैनाल रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए 38 करोड़ 84 लाख रुपए, जबकि शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जेर तमीर काम को मुकम्मल करने के लिए 59 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड की इस्तदा की गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स का इजरा करने के बाद ये जेर तमीर नोट्स को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 309 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर रेट 287 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। मजीद तफसीलात बताएंगे जाहिद आबिद। जी जाहिद। में डॉलर रेट में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इंतहाई तेजी से इसकी कदर में तब्दीली आ रही है और इसी वजह से ओपन मार्केट और इंटरबैंक डॉलर रेट का जो फर्क है वो भी इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर देखा जा रहा है। आज ये फर्क तकरीबन 21 रुपए से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर 309 रुपए से ज्यादा पर फरोख्त होता रहा, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपए और 13 पैसे पर बंद हुआ है। मार्केट बराह के मुताबिक बैंकों की जानब से इंतहाई कम डॉलर फराहम किए जा रहे हैं और जो खरीदार हैं उनके लिए डॉलर खरीदने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। और ये इस वक्त 21 रुपए का जो फर्क है ये रिकॉर्ड साल किया जा रहा है। इससे पहले इस किस्म के हालात नहीं देखे गए। मार्केट बराह के मुताबिक IMF से होने वाली डील में मुसलसल तासीर और दीगर अवामिल की वजह से इस वक्त मार्केट में दबाव है और आइंदा चंद रोज 20 रुपए पर दबाव बरकरार रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। जिना हाउस पर हमला और तोड़फोड़ का ये केस है। खदीजा शाह 7 दिन के लिए शनाख्त के लिए पुलिस के हवाले कर दी गई हैं, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का खदीजा शाह को 30 मई को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो आपको इस हवाले से बताएं कि जिना हाउस पर हमला और तोड़फोड़ का ये केस है, जबकि खदीजा शाह 7 दिन के लिए शनाख्त के लिए पुलिस के हवाले कर दी गई हैं, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का खदीजा शाह को 30 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है, आपको बताएं जिना हाउस पर हमला और तोड़फोड़ का केस है। खदीजा शाह 7 दिन के लिए शनाख्त परेड के लिए पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का खदीजा शाह को 30 मई को पेश करने का हुक्म भी दिया गया है, जबकि खदीजा शाह 7 दिन के लिए शनाख्त परेड के लिए पुलिस के हवाले हैं। जिना हाउस पर हमला और तोड़फोड़ का ये केस है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का खदीजा शाह को 30 मई को पेश करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि जिना हाउस पर हमला और तोड़फोड़ का केस है। खदीजा शाह 7 दिन के लिए शनाख्त परेड के लिए पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का खदीजा शाह को 30 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। नुमान नूर ने हमें ज्वाइन किया है। नुमान, अपडेट कीजिएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने
खदीजा शाह समेत 2 मुल्जमान को जो है वो इस हवाले से शनाख्त परेड पर जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि पुलिस ने तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा खदीजा शाह और हुमा सईद को कमरा अदालत में पेश किया, जबकि दोनों खवातीन मुल्जमान को अदालत में पेश किया तो उनके चेहरे पर जो है वो काले रंग के कपड़े जो है वो डाले हुए थे और इस स्कार्फ के अंदर मुल्जमान को पेश करने के बाद शनाख्त परेड के हवाले से अदालत में इस्तदा की गई और तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि इनकी शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी किया जाए, जबकि दोनों खवातीन मुल्जमा के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद और इस्तदा सुनने के बाद फैसला महफूज किया और बाद अज़ा महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने खदीजा शाह और हुमा सईद को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया और 30 मई को अदालत ने दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। 30 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया।